बिल्कुल My name is Samadip Kaur of class 9. Today we all are here to spread awareness about. Please sir, please ma'am. भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं Honorable Chief Guest, Mr. Shiv Kumar Sharma, SSP Traffic Jammu. Thank you ma'am. Now I request Director Sir Sudan Ji, President of GS Sports Club. Please give a huge round of applause. Thank you, sir. First of all, I will tell you something about road safety. There's great saying, it's better to be safe than it is better saying that give your blood on the right way, not on the highway. We should stop accident before they stop us. Now, I would like to call students of 9th class. First of all, I would like to call Bhumi Thakur of class 9 to come to the dais and tell us something about her given topic, road accident. Please welcome her with huge round of applause. Sergeants, teachers, and all my dear friends, a very warm and adoring good morning to one and all present here. Myself, Bhumi Thakur of class 9, standing in front of you to discuss on very significant topic. I am going to address a crucial issue that is quite prevalent in our daily life, that is road accidents. Road accidents have become very common nowadays. As more and more people are buying automobiles, the incidents of road accidents are increasing day by day. Furthermore, people have also become careless now. Not many people follow traffic rules, especially in big cities. There are various modes of transport. Moreover, the roads are becoming narrower and cities are becoming more populated. Thus, road accidents are bound to happen. If we pick up a newspaper, we will find at least one or two news about road accident daily. They cause loss of life and material. People need to be more careful on roads.
No matter which mode of transport you are from, even the ones on foot are not safe because of the rise in these incidents. Every day, people witness accidents in news from relatives and even with their eyes. Sometimes people drive while talking on call. This often results in serious accidents because driver is not attentive or is not entirely paying attention while driving. His mind is distracted while talking on phone. One should not talk on phone or take pictures while they are on road. Traffic signals or rules should be followed all the time, no matter what the circumstances are. Traffic signals not only help to control traffic, but also save pedestrians and people who are driving. Helmets should be worn all the time if you are traveling on two-wheelers. Or sometimes break laws by having more passengers. Teachers and all my dear friends, a very warm and cheerful good morning to all of you. I, Divyanshi Jabbar of class 9, standing in front of you to express my views on the given topic, electronic documents related to traffic. For this, we should know what is an electronic document. An electronic document is an electronic representation or media content that is intended to be used either in electronic form or printed output. Now, let us know what is electronic document related to traffic. The Union Transport Ministry has asked state to facilitate acceptance of driving license and other documents like vehicle registration certificates in electronic format by enforcement agencies. Vehicle owner can also show their documents like driving license, RCs, insurance certificate through mobile apps such as DigiLocker and M-Parivahan app. The Road Transport had issued a Standard Operation Procedure or SOP to state. The enforcement agencies like Traffic and Transport Department can access these data from Challan app, which has data for online verification of vehicle and its license status. By this, citizens would escape from harassment of collection of documents after paying challan according to ministry. Vehicle owners be allowed to present their documents like certificate of registration, insurance, fitness permit, driving license, certificate of pollution and any other relevant documents in electronic form. The ministry urged the state that SOP may be adopted for ensuring compliance with provision of Rule 139 of Central Motor Vehicle 1989. The people can download many apps and download their driving license. Last but not the least, I just want to say that our India is still fighting with Corona. Thank you very much for listening. Traffic signals. Traffic rules are imposed by the government for the safety of people. Traffic rules are very important for road safety. They are the signals which suggest people when to slow down, when to stop, and when to drive vehicle. Furthermore, the vehicle should maintain the speed limit mentioned in the speed limit board. The horn sign on a board with a line drawn above it tells that people should not horn unless it is the life of others in danger too. Such irresponsible behavior needs to be changed. Life is like a traffic light. Some people have to stop for the others to continue. But unlike the traffic light, there is a time in our life that we have to stop. प्रोग्राम्स ट्रैफिक सेफ्टी वीक के नाम पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए शायद ये भी अपने दिमाग में, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, कुछ 2-3 फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू यूथ उसकी बात करूंगा। इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि लगभग 60% कैजुअलिटी रोड एक्सीडेंट्स में जब भी होती है वो 18 से लेके 35 इयर्स के बीच का जो यूथ है वो उसका शिकार होते हैं। ये एक वजह है कि ट्रैफिक सेफ्टी वीक आप लोगों के साथ हम लोग क्यों यहाँ पे मना रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट आपको एक और फैक्ट आपके साथ साझा करना चाहूंगा। हम हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख से अधिक लाइव्स हर साल खोते हैं
ट्रैफिक के दौरान, रोड पे चलती हुई गाड़ियों के दौरान जो एक्सीडेंट होते हैं लगभग 1 लाख से भी ज्यादा, और ये 1 लाख हमारे इंडिया की कई छोटी सिटीज के पॉपुलेशन के बराबर है। तो ऐसे में खासतौर पर हम जो चीज देखते हैं कि स्कूल के आने के टाइम पे या जब स्कूल से छुट्टी होती है, हम लोग तमाम को ट्रैफिक गाइडलाइंस, तमाम अपने सेफ्टी रूल्स को एक साइड छोड़ते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉयमेंट में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि हम अपनी लाइफ्स को जो है वो रिस्क पे रखते हैं। हेलमेट को पहनना या गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना, मोबाइल का यूज करना, ऐसे बहुत सारे ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स हैं जो आए हुए हमारे गेस्ट आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन मेरा मंच पे आने का, आप सबको एड्रेस करने का मकसद यही था कि आज हमारे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में भी इंडिया में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी डेथ्स अगर होती है तो वो इंडिया में होती है, और उसमें भी शिकार जो होते हैं वो यूथ होता है। इसीलिए आप सबको इसको ज्यादा अच्छे से अडॉप्ट करना है एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि अगर हम अडॉप्ट करेंगे हम आसपास अपनी सोसाइटी को भी बिल्ड करेंगे, और शायद यही यूथ का काम है। बस इतना कहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Respected Chief Guest, SSP Traffic श्री 2021 से 32वां रोड सेफ्टी मंथ यानी महीना मना रहे हैं। इसी के अंतर्गत आपके स्कूल में भी आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये सेमिनार आयोजित किया गया है। बच्चों, जैसे कि पहले आपके जो साथी आए उन्होंने अपने विचार बताए, उन्होंने हमें बताया रोड सेफ्टी के बारे में, ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में। आप लोगों को पता भी है क्योंकि आपके ये करिकुलम का एक हिस्सा भी होगा रोड सेफ्टी का, वो बना भी दिया गया है ताकि अगर आप ही अवेयर होंगे, क्योंकि आप कल का भविष्य हैं, अगर आज के बच्चे अवेयर होंगे तो कल को वो जो है उनको पता होगा रोड पे किस तरीके से चलना है, क्या जो है सेफ्टी मेजर्स जो है अपनाने हैं। आप लोग पहले से ही जानते हैं लेकिन मैं फिर से दोहरा रही हूँ। जब कभी भी हम रोड पे चलते हैं, जैसे कि एक बच्चे ने बोला भी कि हमारी जान जो है वो हमारे हाथों में है। हम कभी भी रोड पे चलते हैं 2 पहिया 2 व्हीलर चलाने के लिए, तो सबसे पहले हमने इंश्योर करना है कि हम अपनी हेलमेट जो है वो अपने सिर पे पहने, हेलमेट सिर पे पहने और फिर 2 व्हीलर लेके बाहर निकले घर से सड़कों पे। इसी तरीके से जब आपने 4 व्हीलर आप चलाएंगे, आप अभी छोटे हैं जो कि 18 साल से ऊपर हैं, जिनका लाइसेंस बनेगा, जो गाड़ी चलाएंगे, वो कभी भी अपने घर से बाहर निकले तो सीट बेल्ट पहनना ना भूलें। रैश ड्राइविंग यानी गाड़ी की गति जो है वो सीमित रखें, लिमिटेड रखें, ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग ना करें, इसे कहते हैं रैश ड्राइविंग। इसी तरीके से आप क्योंकि बच्चे हैं, आपके माध्यम से मैं चाहूँगी कि बाकी लोग भी सीखें क्योंकि कल का भविष्य है। तो शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। अगर आपके आगे पीछे कोई चला रहे हैं तो आप उन्हें रोक सकते हैं कि अंकल आंटी जो भी हैं कि शराब पी के या नशा करके गाड़ी ना चलाएं। इसके अलावा ट्रैफिक लाइट जो है वो जंपिंग ना करें। हमारी सरकार ने इसके लिए फाइन और पेनल्टीज रखे हैं, लेकिन एजुकेशन उसी को कहते हैं कि अगर हमें खुद ही पता हो कि हम ऐसा ना करेंगे तो बेहतर है, फाइन एंड पेनल्टी की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप लोग पहले ही ट्रैफिक ये जो है रूल्स को फॉलो करेंगे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फाइन एंड पेनल्टी की, ठीक है। तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जितने भी रोड सेफ्टी मेजर्स हैं उनको फॉलो करें और अपने आगे पीछे भी अवेयर कराएं लोगों को कि हमें रोड सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। और कभी भी रोड पे जब कभी भी निकले तो हेलमेट पहन के, जो भी सुरक्षा के हमारे हैं वो पहन के ही बाहर निकले। थैंक यू। Invited chief guest, in charge is teachers and all my dear friends. A very warm and affectionate good afternoon to everyone present over here. I am Anchal Gaur of class 9, standing in front of you to represent my views on the given topic, which is M-Parivahan. As we know that M-Parivahan application is a government app. It is a all India RTO vehicle registration. Here, we can search for the registration of any vehicle or the necessary certificates as well as the driving license. We can put in all the details in this app. It gives the knowledge that the driver knows to drive or not. These certificates must be carried by each and
शिक्षा निकेतन स्कूल, डायरेक्टर GS स्पोर्ट्स क्लब, ART मैम उषा जी, हमारे वसीम साहब मंच पर, हमारे बैठे हुए क्लब के मेंबर, स्कूल स्टाफ और शिक्षा निकेतन के स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। रोड सेफ्टी हम सबके लिए समझना बहुत जरूरी है और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज हमें आप बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आप हमारे जम्मू कश्मीर का भविष्य है, देश का भविष्य है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम आज मैसेज आपको देंगे यहाँ पर, वो मैसेज आप सोसाइटी में फैलाएं, अपने घर में फैलाएं, बाकी बच्चों को भी बताएं कि रोड सेफ्टी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका मकसद क्या है, हम क्यों जगह जगह जाके सभी स्कूलों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि रोड सेफ्टी, ट्रैफिक रूल्स को पालन करना कितना जरूरी है। मैं छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा आपको कि राजस्थान में 21 डॉक्टर जो थे एक गाड़ी में जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, अचानक उनका हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ और 13 डॉक्टर जो थे ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। कितने डॉक्टर? और आपको पता है MBBS की सीट कैसे मिलती है? वो बच्चे कौन होंगे जिनको MBBS की सीट मिली होगी? वो सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे अपने राजस्थान स्टेट के, और उनकी वो एक्सपीरियंस डॉक्टर थे जिन्होंने समाज की सेवा कर दी, काफ़ी लोगों की जाने बचाने दी। वो बिना किसी मकसद के, बिना किसी छोटी सी ड्राइवर की गलती से वो 13 डॉक्टर जो हमारे देश का नुकसान हो गया। इसी तरह से हम लोग ये बात देखते हैं कि कुछ लोग जो है हेलमेट नहीं पहनते हैं। हेलमेट नहीं पहनना जो है अपनी शान समझते हैं, बिना हेलमेट के बाहर निकलेंगे, फिर जब ट्रैफिक वाला उसको रोकेगा उससे बहस करेंगे। उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि हेलमेट आपके साथ की सेफ्टी है, इससे आपका बचाव है। हमने एक बात देखा है कि परिवार में कमाने वाला एक ही मेंबर होता है और अपनी छोटी सी गलती से वो जान गंवा बैठता है एक्सीडेंट में, चाहे वो हाईवे पे कार चलाते वक्त मोबाइल यूज़ कर रहा था, या 2 व्हीलर चलाते वक्त उसने हेलमेट नहीं पहनी थी, या रैश ड्राइविंग की थी, या कई बार ऐसा भी होता है कि गाड़ी की मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं थी, टायर बस्ट हो गया, या हेडलाइट वो फंक्शन नहीं थी, हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया, उसकी जान चली गई। एक आदमी के जाने से पूरा का पूरा परिवार जो है जो उसके ऊपर डिपेंड था वो सफर हुआ, और बच्चों की एजुकेशन, परिवार का खर्चा, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता उस परिवार को लपेट लेती हैं। महंगाई का दौर है, तो ये हम बार बार जो है तमाम आवाम को, जनता को, यूथ को, सभी को हम अवेयर करवा रहे हैं कि कृपया करके ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आप बच्चे जो है जब छुट्टी होती है, कुछ बच्चे इतने एक्साइटेड में छुट्टी होगी, आगे नहीं देखना, पीछे सीधा सड़क पे छलांग मार देंगे, चलो ये सड़क क्रॉस करो। आगे कहीं दाएं में कहीं से गाड़ी आ रही है तो आपको हिट कर सकती है। बड़ी बार सुनने को मिलता है। ये सांबा में एक बार हुआ था कि नेशनल हाईवे स्कूल है, यूं ही बच्चों की छुट्टी हुई, सड़क पे आ गए और एक्सीडेंट हुआ, 4 बच्चों की वहाँ ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। कई बार आप जैसे छुट्टी हुई, बस में ट्रैवल करते हैं, कुछ बच्चे बड़े शरारती होते हैं, पीछे डांस करना शुरू हो जाते हैं, आगे गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, पीछे नाच रहे हैं, कोई शरारतें लगी, पंगे ले रहा है किसी से, वो भी शोर शराबे से जो ड्राइवर है उसकी कंसंट्रेशन खराब होती है। और कुछ बच्चे बड़े समय हम आपको जैसे आज आपने जो ये सुन रहे हैं, आप मेरी आप बच्चों से ये अपील रहेगी कि आप जब भी किसी भी बस में ट्रैवल करें स्कूल की, चाहे वो आपके पेरेंट्स गाड़ी क्यों चला रहे हैं, ये जरूर देखेंगे क्या वो ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहे हैं, क्या जो ड्राइवर है वो मोबाइल तो नहीं यूज़ कर रहा गाड़ी चलाते हो। अगर मोबाइल यूज़ कर रहा है बस का ड्राइवर, आप शोर बचाएं, उसको मना करें कि भैया आपके ऊपर सारे 40-50 बच्चे जो बस में बैठे हैं, उनकी जान जो है आपके ऊपर बैठा, मोबाइल यूज़ मत करो, आप शोर बचाओ, उसको मना करो। और अगर तेज चला रहा है, आप हमारे नंबर जो है वो डिस्प्ले होते हैं जगह जगह, आपको अगर डर लग रहा है कि ये रैश ड्राइविंग कर रहा है, हमारे ट्रैफिक के कंट्रोल रूम के नंबर जगह जगह डिस्प्ले है। इवन के बसेस के ऊपर भी हमने एक मैंडेटरी किया है, हर स्कूल बस के पीछे ट्रैफिक पुलिस का जो है नंबर बना दिया है, बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप लोग सेफ सिक्योर रहे, आप देश का भविष्य है, पढ़ लिख के आप IAS अफसर बनेंगे, IPS बनेंगे, कुछ पुलिस में जाएंगे, कुछ आर्मी में जाएंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो आज यहाँ हम खड़े हैं, कल आप खड़े होंगे यहाँ पे लेक्चर दे होंगे बच्चों को। तो ये चेन है, ये चलती रहती है। तो आपका सेफ रहना जो है बहुत ज़रूरी है।
तो मैं ये हमारा जो स्कूल है विशेष शिक्षा निकेतन स्कूल, इसका बहुत नाम है। एक चीज़ है आपकी जम्मू में भी, सिटी में भी है एक शिक्षा निकेतन सर, एक गांधीनगर में अच्छा हाँ, एक और है। तो शिक्षा निकेतन स्कूल है, इसका बहुत नाम है। यहाँ के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं, यहाँ की डिस्टिंक्शन आती है 75% मैक्सिमम ऊपर ही बच्चे जो है मार्क्स लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस परंपरा को कंटिन्यू रखें, आज से ज़्यादा मार्क्स लाएँ। और कोरोना के बाद ये दूसरा सेशन है हमारा स्कूल में, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक साल बंद रहने के बाद हमें फिर आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। हम जब एंटर कर रहे थे तो काफ़ी बच्चे जो है तालियां बजा रहे थे। अब तालियां जो है बच्चे, इसमें भी एक इनकी एक्साइटमेंट थी कि तालियां बंद नहीं करनी, बजती रहे जब तक इसको मना ना किया जाए। तो ये दोनों जो है स्कूल में बड़ी देर के बाद रोटी है, तो ये कंटिन्यू अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। फिटनेस बहुत जरूरी है आपकी। आजकल सब कुछ बच्चे जो है स्ट्रेस में चले जाते हैं मार्क्स को लेकर, कंपटीशन को लेकर। तो कंपटीशन जो है वो उतना ही अच्छा है जिससे आपकी सेहत के ऊपर असर ना हो। पहले सेहत है, फिर उसके बाद कंपटीशन है। लाइफ में अगर आप जो हमने देखा होगा कि बड़े बड़े फिल्म स्टार जो है ये IAS नहीं कर सके, ये IPS नहीं कर सके, लेकिन दूसरे फील्ड में एक्सेल करके आज वो कई है अफसर से ज़्यादा हो। तो आपका कहाँ किस फील्ड में मौका मिले, वो डिप्रेशन में नहीं जाना है, स्ट्रेस में नहीं जाना है। हर एक के लिए ऊपर वाले ने सोच के कुछ ना कुछ रखा होता है। तो अभी हमने आपको कुछ पेपर्स दिए होंगे, कुछ पीछे बच्चे बैठे वो घबरा के शायद हमारा एग्जाम होने वाला है। तो उनकी मैं जो फेस रीडिंग कर रहा था वो डर गया कि शायद कोई एग्जाम होगा हमारा। ये जो है इसमें हमारे ट्रैफिक रूल्स लिखे हुए हैं, कुछ गाइडलाइन है, कुछ आपने जो पिंक कलर का है इसमें फाइन दिए हुए कि किसको कितना फाइन है। तो मैं कुछ 2-3 सवाल आपसे पूछूंगा, डरना नहीं, उसमें सवाल होगा ऐसे ही आपसे जो आप पढ़ के भी बोल सकते हैं। उसमें उसके थ्रू आपको अवेयरनेस का एक मौका मिलेगा। मैं थोड़ा अच्छा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। क्या फटाफट मोबाइल आपके सामने जो पेपर भी दिया जाएगा। कोई बच्चा जुवेनाइल अंडर एज बच्चा गाड़ी चलाते वक्त पकड़ा गया, ट्रैफिक पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसमें क्या फाइन है, क्या पनिशमेंट का प्रावधान है? फटाफट। फाइन होता है अंडर 18 को, मतलब जेल, मतलब पनिशमेंट हो सकती है, सॉरी फाइन पेरेंट्स को है कि बच्चे को मुझे लगता है आप में से कुछ की शक्लें मुझे लगा कि स्कूटी चलाते हैं, कहीं देखा होगा कहीं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलती ना करें, अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं देना है। अगर कहीं छोटा बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया, कार या स्कूटी, तो उसके पेरेंट्स के खिलाफ FIR होगी, उसको जेल हो सकती है और मिनिमम उसमें 25,000 जो है फाइन, 25,000 फाइन। ये मैसेज घर भी लेके जाना, अपने पेरेंट्स को बताना ताकि आपको गाड़ी ना चलाने जब तक आपका लाइसेंस ना बन जाए। और ये इसलिए है कि आपने पीछे दिल्ली में सुना होगा कि एक DPS स्कूल का बच्चा BMW चलाते हुए 3 लोगों को मार गया दिल्ली रोड पे। सुना होगा आपने? अगर नहीं आप नेट पे पढ़ लेना, यूट्यूब पे देख लेना। वो किसी करोड़पति का बेटा था, वहाँ फिर उसको छुड़ाया गया, थाने शाने में अप्रोच करके वो निकल गया। वहाँ पे बड़ा हिम्मत कराई हो, देखो जी 3 लोगों को मार दिया, छोटा बच्चा यूनाइन जो है उसको कोई सजा नहीं। इन चीज़ों को देखते हुए पेरेंट्स को मालूम किया कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को गाड़ी देंगे उनके खिलाफ FIR होगी, मिनिमम उसमें 3 महीने की सजा है, जेल है और 25,000 है फाइन। तो कृपया करके इन चीज़ों को समझें, रोड सेफ्टी को समझें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और हमारा जो मैसेज है इसको बहुत बढ़िया है। पुलिस में आप जाओगे पढ़ना, आपकी हाइट को हमें अच्छा लगता है, ऐसी हाइट हो। एक लाइक 2000 तारीख फिटनेस के लिए। राहुल इधर, राहुल हाँ इधर, वेरी गुड। मैं एक्टिव देखा हूँ तो बहुत ही अच्छा कवरेज करती है, पॉजिटिव चीजें
के साथ नहीं है, नेगेटिव भी रहते हैं, लेकिन बहुत ही एक्टिव। तो मैं चाहूँगा हम इसको भी आज अब स्कूल में सम्मानित करें। Now, I would like to call Divyanshi Jambal of class 9. Now, I would like to call Harleen Kaur of class 9. Please welcome her with a huge round of applause. Thank you, sir. Please have a seat. Now I would like to request Director Sir to give a piece of token, to give a piece of love to our Honorable Chief Guest, Mr. Shiv Kumar Sharma, Assistant. Now I request Director Sir to give a piece of now I would like to यहाँ पे देख के हमें चलो ये सभी बातें कर ली एसएसपी साहब ने, मैम ने, और जो आए हैं अच्छी अच्छी बातें की रैली की, ये लोग बात। Good afternoon, everyone. I hope you had a very good day today. There's so much thoughts that are forward by so much eminent guests over here. God bless you all and make sure that you have learned something out today. Sir को request की थी इनको थोड़ा uniform करो करना. He has helped me कि whenever you move it forward in your future 10th or 12th, afterwards all the students who are physically fit go for uniforms, maybe army, maybe JK police or anywhere. Prepare well, have a physical fitness, have a mental toughness, and prepare for this army exams. God bless you all, and you all have got this traffic notice, everything. वो भी आ गया, चलान कितने के कटने हैं, ये घर में जाके मम्मी पापा को बताना. And sir, this all crowd is 16 years of age, 16, 17, 15 years. So it is very important for them to know this fact कि जब आप स्कूटी चलाते हैं, be responsible. पहले तो चलानी ही नहीं है, unless and until you have at least a learner's license. But if suppose you have a learner's license, make sure आप पूरी responsibilities के साथ चलाएं, because it's not only you who gets affected, it's your family. सर ने बताया ना आपके पापा मम्मा को भी वो पेनल्टी होगी, उनको भी जेल हो सकती है. So it's not only you, it's your whole family that gets affected. Best of luck, learn from this, and have a very, very safe future. Thank you so much. And one more thing.
very special clap for all the participants. They spoke really very well today. They have given all the information about the digital initiatives that are taken by the Government of India. So congratulations to all of them. God bless. The chairman of GS Sports Club for vote of thanks, who is organizing the awareness program in our school. Please welcome him with huge round of applause. Respected Principal Sir, Chief Guest of Honor, School Staff, Management, I would like to thank you Principal Sir who have given me the opportunity